Hello everyone. So now I have taken up 4-5 questions of capacitance and let us quickly go through these concepts. First question is, and all these questions are from DC Pandey, non-medical. So 12th question, it shows a 10 volt battery and a network of 4 capacitors joined like this. Now we have to calculate potential of point A and point B given that this point N has been earth. So one simple thing, the point that has been earth obviously represents zero potential. So n point ka potential V at n becomes zero, right? Now see carefully. All these capacitors are of same capacitance and 10 volt is to divide in all of these. So potential across each of the capacitor, each V across each capacitor becomes equal to obviously 10 by 4, that is 2.5 volt. I have to find potential of A and B. Look at this. A is at certain higher potential than N. How much? 1, 2, 3. The potential drop across 3 capacitors. So obviously VA minus VN, that is 0, is equal to P times 2.5. Got that? So that simply gives you 7.5 volt. So the potential of point A is 7.5 volt. Similarly, let us go to B. We can see that potential of N minus potential of B is equal to potential drop across this one capacitor. And that, my dear, is obviously 2.5. So this leads to potential across B, potential drop across B, or if I want to go for the point B, potential at point B becomes equal to minus 2.5 volt, right? So एक बार ध्यान से देख लें, n का पोटेंशियल 0 था तो a का कितना 10 वोल्ट इन चारों में डिवाइड हुआ 2.5 ईच करके, तो यहाँ पर आ गया 7.5 और यहाँ पर हो गया minus 2.5 because that is connected to the negative point. So done. Moving on to next question, question number 14. This shows a capacitor which discharges, charged capacitor rather, which discharges through a resistance R with a time constant, this eta. Time constant is shown as eta. Now they are saying what will be the time constant for the power dissipation through resistance R. तो भाई अगर R के थ्रू पावर डिसिपेशन देखना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू I square R. Right, it is I square R. That means I need to put the value of I here. अब हम सब जानते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर करंट का फॉर्मूला क्या होता है. I just put that I is equal to I naught e raised to the power minus t by tau, and tau here is eta. So this is current I square into R. That should be power dissipated. Now I can mention as I naught square into R. ठीक है, this becomes the maximum power. I naught square into R और साथ में क्या आ गया e raised to the power minus t into 2 by eta. That means t by eta by 2. Got that? E raised to power minus 2t by eta लिखने का मतलब क्या है? E raised to minus t upon eta by 2. So I was looking forward to this thing only. So time constant कितना आ गया? Eta by 2. That's simple is the solution. So this time constant that I wanted to calculate comes out to be eta by 2. That's all. Now I move on to the next question. ये दोनों questions DC पांडे नॉन मेडिकल के हैं, बैक एक्सरसाइज लेवल 1, जो दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स को टेक ऑन करते हैं कि जहां पे अर्थ के वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप ए और बी का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. एंड दिस क्वेश्चन डील्स विद डिस्चार्ज. जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करना है तो कैसे आप करंट को लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस शोज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट जिसके साथ एक रेजिस्टेंस 2 ओम है इसी आर्म के अंदर. पैरेलल एक आर्म बनी है जिसमें 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 4 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल जो आर्म बनी है उसके अंदर 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है. हमें फाइंड करना है कि स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा. तो माय डियर, these are 3 arms, arm 1, arm 2 and arm 3. ठीक है, अब इन तीनों आर्म्स को आप पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं.
आप डायरेक्टली बात करें कैपेसिटर की जबकि स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, तो माय डियर जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे करंट हो जाता है जीरो, यानी जो आर्म 2 है, यानी करंट इन आर्म 2 हैज बिकम जीरो। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, उसने ब्लॉक कर दिया। अब सर्किट क्या बना, 12 वोल्ट बैटरी और दो रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 6 ओम। So let me first find the current flowing through the circuit. Current flowing in steady state becomes equal to voltage upon total resistance, 2 plus 6 is 8. That gives me 3 by 2 ampere. So the current flowing in this outer circuit except this capacitor is 3 by 2. अब आप समझ सकते हैं आर्म 2 और 3 पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आर्म 3 में हो रहा है वही आर्म 2 में हो रहा है। So V becomes equal to current into resistance. So it comes out to be 9 volt. So the potential drop in arm 3 or arm 2 is 9 volt, and there is no current, so no potential drop across this resistance of 4 ohm. यहाँ कोई potential drop नहीं, so सारे का सारा potential किसके क्रॉस चला गया, capacitor. So this is the potential drop across capacitor. So the charge stored becomes equal to Q is equal to C भी होता है. So 9 to the 18 microcoulomb is my answer. Okay. Moving on to the next question. तो एक बार इसमें फिर मैं एक चीज बता दूं, आपको क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में फुली चार्ज हो चुका होता है तो उसकी आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, इसलिए इस रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। 19th क्वेश्चन, ये कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा नजर आ रहा है। देयर आर टू प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बीच में प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा सच दैट ये प्रोटॉन जस्ट अपर प्लेट को मिस करके नीचे आ जाता है और लेंथ जो कवर की है वो एल है। अगर प्लस वन के प्रोजेक्टाइल के बारे में सोचो तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आई कैन सी कि यहाँ तक मैक्सिमम हाइट बनी विच इज शोन एज डी, और ये बन गई रेंज, रेंज इज शोन टू बी एल। वी हैव टू फाइंड tan थीटा इफ प्रोटॉन जस्ट मिसेस द पॉजिटिव प्लेट। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, देखिए रेंज पता है, हाइट पता है, फॉर्मूला लिख लेता हूं। रेंज कम्स आउट टू बी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, बाय जी। जी के प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a। व्हाई एम आई सेइंग a, बिकॉज देखिए आप ध्यान से a कितना होने वाला है, फोर्स अपॉन मास, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, which will be directed vertically downwards. तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एज इज गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं भी गिवन होगा तब भी ऑप्शंस को देख के पता चल जाता है, अगर जी इंक्लूडेड नहीं है तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो दिस इज एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट। नाउ सी आर इज दिस, व्हाट अबाउट एच, एच का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू u square sin square theta by 2g, and g को किसने रिप्लेस कर दिया, a। now just see what is r by h, क्योंकि मुझे tan theta फाइंड करना है ना, आई कैन सी इसे मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। it becomes u square into 2 times sin of theta into cos of theta divided by a, this is r, और h आपके सामने u square sin square theta by 2। now I'm taking r by h, r by h बन जाएगा u square gets cancelled, I'll just show it for your convenience, u square gets cancelled, a gets cancelled, 1 sin theta gets cancelled। तो देखना r by h में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 था, ये 2 भी जो h के डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, it becomes 4 into cos theta full sin theta, 4 into cos of theta upon sin of theta। तो मुझे मिल गया tan थीटा, दिस इज 1 upon tan थीटा, सो tan थीटा simply becomes equal to 4 upon r by h। आई होप आप देख समझ सकते हैं यहाँ से, this becomes, I'll just write it again, look at it carefully, 4 upon this thing, that is r by h, because sin upon cos is tan theta, so r divided by h, ठीक है।
अब हमें tan थीटा निकालना था, r की वैल्यू l गिवन है और h की वैल्यू d गिवन है. आई जस्ट पुट है 4 into height, that is d, upon range, that is l. So my answer to this question becomes tan theta is equal to 4d by l. So अगर आपकी +1 से प्रोजेक्टाइल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को कंपैरेटिवली फास्टर कर पाएंगे. अब मैंने तो ऐसे किया, जिस बच्चे को बहुत अच्छे से याद होता है वो क्या याद करता है, सर tan थीटा यूज्ड टू बी, इट यूज्ड टू बी 4 by n. ध्यान है अगर आप में से किसी को हो, 4 by n, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है कि रेंज हाइट के कितने टाइम्स है, यानी ये n जो है वो r by h होता है. तो कोई ये याद है तो वो और जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो 4 क्वेश्चंस लिए जिनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को टेक इन किया. यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर फुली ब्लॉक कर देता है करंट को, और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को यूज किया आपने. लास्ट क्वेश्चन. It includes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 plates such that every plate has an area A. Plate area is given to be A. Separation between the plates D, D, D. This is 2D and this again is D. Now this second plate is considered as a point A, and for this we have considered point B. We have to find capacitance between A and B. तो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, while finding capacitance आपको एक प्रॉपर सर्किट बनाना पड़ेगा, और उस सर्किट कब बन पाएगा जब आपने पॉइंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया होगा. क्या आइडेंटिफाई करना था? दिस इज ए, दिस इज बी. लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये तो ना ए से कनेक्टेड है ना बी से कनेक्टेड है, तो आई शुड कंसीडर इट एज सी. ठीक है भैया, फर्स्ट प्लेट सी का पार्ट बन गई, सेकंड ए का पार्ट बन गई, थर्ड बी का पार्ट बन गई, फोर्थ का क्या करें? फोर्थ को फिर डी मान लेते हैं, तो इज डी. फिफ्थ भी सी बन गई और सिक्स्थ प्लेट बी बन गई. तो व्हाट आई कैन सी इज, अगर मैं ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दूं तो ए और सी के बीच में कैपेसिटर बनेगा, यहाँ से ए और बी के बीच में कैपेसिटर बनेगा, फिर यहाँ पे बी और डी के बीच में कैपेसिटर बनेगा, डी और सी के बीच में कैपेसिटर बनेगा, और फिर सी और बी के बीच में कैपेसिटर बनेगा. आप प्लेट्स देख के नेमिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. तो जैसे ये पता चला मैं बनाना शुरू करता हूँ. ए से सी चलते हैं. ये पॉइंट है सी, दिस इज ए and this point is C. A से C मुझे कैपेसिटर मिल गया, so this is done. Now I have A to B, directly A से B जाना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ B कहाँ जाके बन पाएगा. इसे भी छोड़ रहा हूँ कि अल्टीमेटली B पे कनेक्ट. This also is done. Now B और D के बीच में एक कैपेसिटर है, D और C के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और C और B के बीच में भी एक कैपेसिटर. तो C से B अगर मैं जाना चाहूँ तो एक डायरेक्ट कैपेसिटर मुझे मिल जाएगा. इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट टू बी B. अब C ये है, B ये है, बीच में एक पॉइंट बनेगा D. C से D भी एक कैपेसिटर बन रहा है, और D से B भी एक कैपेसिटर बन रहा है. तो ये पॉइंट इस तरीके से, और A फिर अल्टीमेटली यहाँ आकर B के साथ एक कैपेसिटर फर्दर करता है. तो पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखना, यही सबसे मेजर पॉइंट होता है कि आप नेमिंग ठीक से कर लें और फिर बीच में कैपेसिटर्स बना पाएं. वन कैपेसिटर इज बिटवीन ए एंड सी, वन कैपेसिटर इज डायरेक्टली बिटवीन ए एंड बी, राइट. वन कैपेसिटर इज फ्रॉम सी टू बी, ये जो सबसे नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है. वन कैपेसिटर इज बिटवीन डी एंड सी. देखो ये पॉइंट डी है, डी और सी के बीच में कैपेसिटर है, और साथ साथ डी और बी के बीच में भी कैपेसिटर है, तो ये बन गया डी और बी. सो दिस इज माय सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस. Now what I need to do is, ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में हैं. अच्छा पहले वैल्यूज को लिख दूं. जैसे ही आप प्लेट सेपरेशन डबल करते हैं कैपेसिटी हाफ हो जाती है. तो अगर मैं बाकी सारे कैपेसिटर्स को C लिखना चाहूँ, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, और C से D के बीच में भी C है, तो माय डियर जो D और B के बीच में, सॉरी D और C के बीच में कैपेसिटर बना, ये वाला कैपेसिटर C/2 बन जाएगा. D और C के बीच में C/2 बन जाएगा, D और B के बीच में भी C. That's it. तो C, 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 और ये बना C/2, क्योंकि यहाँ पे आपने सेपरेशन को डबल कर दिया. फाइन. नाउ लुक एट दिस, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज सॉल्व करूंगा तो C1 C2 upon C1 plus C2, that gives me C²/2 upon this plus this is 3C/2. 1 C gets cancelled, 1 2 gets cancelled. What I get is C/3. So it gives me
c/3। तो माय डियर c/3 कहाँ मिला? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब इसके पैरेलल में c आ गया, तो मैं ये चलता जा रहा हूँ साथ साथ, प्लस c पैरेलल में आ गया, तो कितना बन गया? 4c/3। यानी c और b के बीच में मुझे टोटल कैपेसिटेंस मिल गई 4c/3। नाउ दिस इज इन सीरीज विद c। अब फिर से सीरीज आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। सीरीज है तो c1 into c2 divided by c1 plus c2। you can see अगर प्लस लगाऊंगा तो 4 plus 3 7 c/3 आ जाएगा। सो फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो c से c कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, व्हाट आई गेट इज इट बिकम्स 4c/7। यानी a से b तक इस आर्म में कैपेसिटेंस होगी 4c/7, और ये वाला कैपेसिटेंस उसके पैरेलल में है, तो अलोंग विद दिस आई गेट c। तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करते हैं, 4c/7 plus c कितना होगा? 7 plus 4 11। 11c/7 should be the answer for the capacitance. Now 11/7 into c। c कितना था? c था हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, यहाँ पे देखें, which is a epsilon naught by d, which has been mentioned to be 7 microfarad। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 7 microfarad यूज कर रहा हूँ। 7 gets cancelled, my answer simply becomes equal to 11 microfarad। So my dear, that is the final solution for this question. So these were 5 questions I took on. I hope you would have been able to understand. So this is how we are going on in online tutoring. Thank you very much. I commence here.